Hi everyone, welcome back and welcome to Kannal's Academy. We were studying chapter number 4, Science 2, Environmental Management. In the first two sessions of the chapter, we have covered so much about ecosystem and what different types of pollution are harming the environment. Today we will be understanding कि अगर environment इतना important है तो उसका conservation कैसे किया जाए. Now we have studied air pollution, water pollution and soil pollution. तो हमने देखा था कि पॉल्यूशन कितना बड़ा विलन है यहाँ पर. पॉल्यूशन की वजह से कितने सारे अबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट हो रहे हैं और ये अबायोटिक फैक्टर्स जब अफेक्ट होते हैं तब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन लाइफ पे भी अफेक्ट आता है. सो इफ दिस इज डायरेक्टली अफेक्टिंग अस और इनडायरेक्टली अफेक्टिंग अस, इजंट इट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ये पॉल्यूशन को रोकें? यस, सिर्फ पॉल्यूशन को ही नहीं रोकना है, हमको एनवायरनमेंट को कंजर्व भी करना है. कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, नॉट ओनली फॉर अस बट ऑल्सो फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस. व्हाई? बिकॉज थिंग्स दैट वुड गेट कंप्लीटेड, जो रिप्लेनिश हो जाएगी, जो कंप्लीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो तो वापस मिलने से रही. ओनली सम सोर्सेज लाइक सनलाइट कभी खत्म नहीं होगा, सोलर एनर्जी. बट अगर सॉइल और वाटर नहीं होगा तो सिर्फ सोलर एनर्जी से प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं? नहीं. तो दिस इज द रीजन व्हाई वी नीड टू कंजर्व द एनवायरनमेंट. लेट्स स्टार्ट विद नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट. ओके, बिफोर वी गो अहेड, let's take a quick look on the topics that we are going to study today. Need for conservation, environmental conservation, our social responsibilities, and we will be understanding some laws. Let's start with the first topic, need for conservation. Okay, what is the need for conservation? Generally, people are not aware that how much environment is useful to us in day-to-day life, and there should be some protocol, there should be some restriction कि कितनी चीज़ कितनी यूज़ करनी है. Okay, there should be large-scale participation of people in environmental conservation. See, this topic is very theory-based. There are not much practical examples here or too many chemicals to learn. जैसे लास्ट पार्ट में वी डिड दैट टेबल, फिर हमको सोर्सेस लर्न करने थे. ये पार्ट थोड़ा थियोरी वाला है, इसलिए इजी है, मतलब सिर्फ लर्निंग पार्ट इज मोर. It will be possible to answer the environmental problems only if environmental protection conservation becomes an effective public movement. If we all together participate in this, then environmental conservation can be achieved. Okay. For this purpose, values like positive attitude towards the conservation, like if the water is being wasted or if you see someone polluting land surface or a river body or a water body, so it is your responsibility कि उसको जाके रोको कि भाई पानी खराब मत कर, सॉइल खराब मत कर, एयर पोल्यूशन मत कर. तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए. ये नहीं कि नदी कौन सी मेरे घर की है, ऐसा नहीं होता. नदी सबकी है. अगर कोई कुछ रिवर खराब कर रहा है तो इट इज इवन योर एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टॉप दैट पर्सन फ्रॉम डूइंग सो. ओके, दिस विल हेल्प टू मेक द फ्यूचर जनरेशंस मोर अवेयर. इफ राइट नाउ वी आर पुटिंग दिस इनटू इफेक्ट, तो आगे आने वाली जनरेशन को इसका ज़्यादा फायदा होगा और उन वो लोगों को हमारा ही एग्जाम्पल मिलेगा ना कि अगर ये लोग कर सकते थे तो हम क्यों नहीं. अवेयर अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन. So as to achieve this, it is necessary to increase awareness through more and more education. That is what we are doing. Your chapter is educating, creating awareness about environmental conservation. There is a small paragraph in your textbook that is a peek into history. A peek into history मतलब थोड़ा हिस्ट्री में जाकर देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ था. In 1972, United Nations Environmental Program, that is UNEP, has been established in a conference arranged in which environmental problems were discussed. उसके बाद एक separate environmental ministry बनी जहाँ पे पूरे सारे countries के environmental issues के बारे में discussion होता है. साल में 2 बार conference होती है. In fact, India से भी environment ministers go and attend those meetings and they look into this कि क्या हर country की कुछ अलग problem है. लाइक किसी कंट्री में वाटर पोल्यूशन इज अ प्रॉब्लम, किसी कंट्री में एयर पोल्यूशन इज अ प्रॉब्लम.
तो सबके जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस किए जाते हैं। अगर प्रॉब्लम अलग है तो सोल्यूशन भी अलग होता है। Today, all the developing and underdeveloped countries have accepted the responsibility of environmental conservation. वो कैसे? I'll explain you. See, what happens is, अभी है ना 3 टाइप की कंट्रीज होती है। एक है अंडरडेवलप्ड, जैसे कि बांग्लादेश। दूसरी हो गई डेवलपिंग, जैसे कि इंडिया। और तीसरी डेवलप्ड है। गिवन द रॉन्ग हायरार्की, डेवलप सबसे ऊपर होना चाहिए, अंडर डेवलप सबसे नीचे। नंबर चेंज कर देते हैं, हम एक काम करते हैं, सबसे ऊपर होना चाहिए था डेवलप्ड, जैसे कि यूएसए। हाँ ठीक है। सो वी हैव द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक एनी अफ्रीकन कंट्री वी कैन से। ठीक है, तो अब ये कैटेगरी के हिसाब से समझते हैं कि तीनों ही टाइप की कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पार्टिसिपेट इन एनवायरमेंट कंजर्वेशन। बट सबसे ज़्यादा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? डेवलप्ड नेशन की। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। यूएसए का एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो अमेरिका इज ऑलरेडी डेवलप्ड, तो अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि अगर कंट्री ऑलरेडी डेवलप्ड है, तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, पैसा है, तुमको किसी चीज़ का कमी नहीं है, तो तुम क्यों पोल्यूशन कर रहे हो? लाइक प्लास्टिक इज अ चीप ऑल्टरनेटिव, इसलिए हम प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट अमेरिका इज ऑलरेडी अ रिच कंट्री, तो तुम क्यों प्लास्टिक यूज़ कर रहे हो? तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, तुम वुड यूज़ करो, तुम दूसरे ऑल्टरनेट चीज़ें यूज़ करो, तुम क्लॉथ यूज़ करो। व्हाई आर यू यूजिंग प्लास्टिक? समझा? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी जिसके पास सारी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज है, उसके बाद उससे थोड़ा कम, और उसके बाद जिसके पास बिल्कुल नहीं है। लाइक अंडर डेवलप्ड नेशन से यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि भाई पोल्यूशन मत कर। अफ्रीका के किसी कंट्री में जाके मत बोलो उसको कि नदी में कपड़े मत धो। अरे भाई उसके पास पानी है ही नहीं घर में, तो वो नदी पे आके कपड़े धोएगा ना? दे डू नॉट हैव टैप इन द होम्स, देन हाउ वुड दे थिंक अबाउट नेचर, एनवायरमेंट? क्यों सोचेंगे? इंसान खुद के बारे में पहले सोचेगा ना। बट अमेरिका को तो ये प्रॉब्लम नहीं है ना, तो अमेरिका क्यों वाटर पोल्यूशन कर रहा है? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर, दैट कंट्रीज हु आर वेरी वेल डेवलप्ड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट है, देन डेवलपिंग नेशन की है। इंडिया की भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जितनी अमेरिका और यूके की है। पहले अमेरिका और यूके को पोल्यूशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, बिकॉज दे हैव एम्पल ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज। उसके बाद इंडिया करेगी, उसके बाद दूसरी कंट्रीज करेगी, उसके बाद आता है चांस अंडर डेवलप्ड नेशंस का, छोटे छोटे कंट्रीज का, लाइक अफ्रीकन कंट्रीज का। उनकी प्रॉब्लम नहीं है, वो बेचारे ऑलरेडी दे आर नॉट एबल टू मीट देयर डेली डिमांड्स, वो डे टू डे डिमांड्स तो नहीं मीट कर पा रहे, और किधर ये लोग बेचारे ये चीज़ करेंगे? सो दैट्स ऑल अबाउट। ओके, so this was how different countries are responsible and should take up the cause of environmental conservation. Now their efforts are in this direction. Whose effort? Country's effort. They have defined the future plans about environmental protection and have constituted the necessary laws. There are international laws as well as national laws. International laws are at UN level, United Nations Organization, UNO. एंड नेशनल लेवल पे हमारे इंडिया के खुद के अलग अलग लॉज एंड एक्ट्स होते हैं जो फॉलो करने आर मस्ट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक फॉर द डे इज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन आर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंस एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन देयर इज अ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट। ह्यूमंस है तो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट है तो हम हैं। ये मैंने पहले भी समझाया हुआ है कि एक भी ऑर्गेनिज्म अगर एनवायरनमेंट से बाहर, सब कुछ इम्बैलेंस हो जाता है। Humans stepped on Earth long after the formation of Earth. On the other hand, human being proved its superiority as compared to other animals with the help of characters like intelligence, memory, imaginary ability, etc. हमने खुद की एबिलिटी से रिसोर्सेज यूज किए। कोल पहले भी था, बट कोल को जलाकर फ्यूल बना सकते हैं, ये हमारी एबिलिटी है ना। वुड, झाड़ पहले भी थे, ट्रीज पहले भी थे, बट वुड को कट करके घर बना सकते हैं, ये हमारी एबिलिटी है ना। ओके, इन एन अटेम्प्ट टू लिव अ सैटिस्फैक्टरी लाइफ
ह्यूमन केप्ट ऑन स्नैचिंग फ्रॉम द नेचर, हमको ऐसा ग्रीड आने लग गया, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये भी बनाएंगे वो भी बनाएंगे, सब कुछ ले लेंगे, कुछ भी छोड़ना ही नहीं है नेचर से, एवरीथिंग वी वांटेड, एंड बाय स्नैचिंग वी जस्ट फॉरगॉट वी आर नॉट द क्रिएटर्स, वी कैन नॉट क्रिएट इट बैक अगर सब कुछ खत्म हो गया तो. And this lead to increase in problems. From this entire scenario, we can understand that the human has a crucial role in maintaining the environmental balance. अगर हम अभी भी अपना ग्रिड थोड़ा कम कर दें तो बैलेंस अचीव हो सकता है ना, बट हम हमारा ग्रिड कहाँ कम कर रहे हैं. इंडस्ट्रीज आर एट अ डिफरेंट लेवल. Industries doing deforestation at such a huge level, such a large scale level, that forested region of the earth are depleting at the ratio of at the indices of 10:10 basically. मतलब जहाँ 1:10 के indices पे in simple terms जहाँ 1% deforestation होना चाहिए था वहाँ 100% deforestation हो रहा है. समझ रहा है. तो अगर इस तरह से झाड़ कटते रहे, डिफॉरेस्टेशन होते रहा, तो इतना फॉरेस्टेड एरिया, इतने ट्रीज वापस कब आएंगे? नॉट पॉसिबल. इफ ह्यूमंस हैज डिस्टर्ब्ड द एनवायरमेंटल बैलेंस, देन ह्यूमन इटसेल्फ कैन ओनली कंजर्व एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ नेचर. Many times general public is unknown that its activities are harmful to environment and thereby unknowingly many activities would happen. बहुत बार ना जैसे कि गणपति उत्सव में लोगों को पता नहीं होता है कि अननोइंगली वो लोग एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं. Bringing a environment eco-friendly idol is our responsibility, our social responsibility. कि हम जब घर पे गणपति लाए तो वो इको फ्रेंडली हो, हम जो डेकोरेशन करें वो रीयूजेबल हो, जो पिछले साल किया था उसी को थोड़ा और मॉडिफाई करके अगले साल यूज करें. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जब रोड पे खाते हैं तब प्लास्टिक सीधा ना फेंके. इट इज आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई जस्ट गिवन यू वेरी सिंपल बेसिक एग्जाम्पल्स जो हम खुद फॉलो कर सकते हैं. कभी कभी हम अपनी डेली लाइफ में ये चीज़ें भूल जाते हैं. अब जब बाहर नहीं जा सकते तब वी हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर में ही है तो बराबर कचरा ट्रैश बिन में फेंकते हैं, बराबर वो सारा कचरा दिन में एक बार घर के बाहर जा रहा है. बट वही जब चीज़ें नहीं थी, जब हम घर के बाहर जाते थे, when we used to go to the coaching classes, उधर तो क्लासेस में बाहर बराबर से वेफर का चिप का पैकेट फोड़ा, इधर फेंका पैकेट बेंच के नीचे, च्युइंगम बेंच के नीचे. घर पे तो नहीं कर रहे ना ये. घर पे कितनी बार लेक्चर देखते समय च्युइंगम नीचे लगा दी टेबल के? नहीं लगा रहे ना. क्यों नहीं लगा रहे? बिकॉज वी हैव सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि घर अपना है, वैसे ही प्लैनेट भी अपना है. सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रख के अगर उसको गंदा नहीं करेंगे ना तो भी चलेगा, ऐसा कोई बुरा नहीं मानेगा कि अरे यार इसने तो घर गंदा ही नहीं किया, इसने तो प्लैनेट खराब नहीं किया, ऐसा ही आया था ऐसा ही चला गया बिना प्लैनेट खराब किए. ऐसा नहीं भी करेंगे तो चलेगा. व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट लीविंग कार्बन फुटप्रिंट्स. व्हाट आर कार्बन फुटप्रिंट्स? मी एमिटिंग कार्बन इज मी लिविंग कार्बन फुटप्रिंट्स. मैं अपनी पूरे लाइफ में ऐसा काम करूँ जिसकी वजह से कार्बन का लेवल बढ़ गया अर्थ पे, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी. मतलब मैंने अपने पीछे कार्बन फुटप्रिंट्स छोड़ी है. हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे लिए इतना हरा भरा ग्रीन प्लैनेट छोड़ा था, इतना अच्छा फुल ऑफ रिसोर्सेज प्लैनेट छोड़ा है, और हम क्या छोड़ेंगे हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए? कार्बन फुटप्रिंट्स, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. सो इट इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एट बेसिक लेवल कि हम अपने लेवल पे जितना हो सके नेचर को कंजर्व करें. At government level क्या चल रहा है? At government level there are many laws enacted to conserve the environment and to protect the nature. The first act over here is Forest Conservation Act of 1980. The reason I have put this up on board is ये सारे acts एग्जाम में पूछते हैं with year. So learn these acts. टेक्स्ट बुक में है ये एक्ट, बॉक्सेस में है अलग अलग, और उनके नीचे उनका क्लॉजेस भी है. So you have to learn all these acts. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, ये एक्ट में बताया गया था कि फॉरेस्ट में बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड हंटिंग, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड कटिंग ऑफ ट्रीज होगा. हंटिंग तो अलाउड ही नहीं है इंडिया में. स्पोर्ट हंटिंग का मतलब होता है शौक से बस घोड़ा लेके निकल गए और जो रास्ते में दिखा उसको ठैंक है, नहीं. इंडिया में इट इज नॉट अलाउड एनी मोर. ओके, सो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980. एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1986, जिसमें वापस वो कार्बन फुटप्रिंट्स के बारे में इन लोगों ने एक्सप्लेन किया है.
Then they have also told industries and chemical factories कि उनको कैसे अपना pollution level कम करना है, अपना contribution कम करना है to the pollution on the planet. Wildlife Protection Act 1986, in which they have said कि hunting is not allowed, poaching is not allowed. What is poaching? Poaching बोल रही हूँ मैं. Okay. Poaching is पोचिंग का मतलब होता है एनिमल्स को हंट करके सेल कर देना, अपने वो हाथी को हाथी दांत के लिए मार के हाथी दांत बेच देते हैं ना, वो करना. और बहुत सारे एनिमल्स को फर के लिए भी करते हैं, स्किन के लिए भी करते हैं, लेदर बनाते हैं, उसको बोलते हैं. ओके, सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पुट्स अ रेस्ट्रिक्शन कि कोई भी ऐसे टाइम पास के लिए किसी एनिमल को मार नहीं सकता. एंडेंजर्ड एनिमल्स, एनिमल्स विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो बहुत कम है पॉपुलेशन में, उनको मार नहीं सकते, मार के सेल नहीं कर सकते. इनफैक्ट चाइना पे तो 90 इयर्स का रेस्ट्रिक्शन लगाया था यूएसए ने, क्योंकि इतना पागल हो गया था चाइना, इतना पागलों की तरह एनिमल पोचिंग कर रहा था. जितने एनिमल्स हम वो खाता तो है ही, ये कुछ भी एनिमल को मार के बेचता भी है दूसरे देशों को, इतना अलग ही पागलपन के लेवल पे था. अभी इस साल ही लाइक इन द मंथ ऑफ फेब प्रोबेबली उनका वो जो 99 या 90 इयर्स का कुछ रेस्ट्रिक्शन था वो हट गया, पूरा हो गया. तो दे वर सपोज टू स्टार्ट हंटिंग एंड सेलिंग एनिमल्स, पोचिंग करना शुरू करने वाले थे. उसके पहले कोरोना की वजह से एवरीथिंग स्टॉप, वरना उनका वापस वो एनिमल्स को ठाया शुरू होने वाला था. एंड इतना क्रूएल्टी से मारते हैं, पहले जानबूझ के एनिमल रिप्रोडक्शन करवाते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं, और फिर वो बच्चों को बड़ा करके फिर मार मार के बेचते हैं. मतलब इल मेंटालिटी. एंड चाइना ही सबसे ज़्यादा ये करता था. दैट इज द रीजन यूएसए हैड टू इम्पोज सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस. ओके, so I'm talking about Wildlife Protection Act of India itself. इंडिया में भी ये एक्ट है ताकि कुछ भी स्मगलिंग या पोचिंग ना हो एनिमल्स की, फॉर द पर्पस ऑफ स्किन और आइवरी एज आई सेड. ओके, so this was all about acts. Now there is an example given here for Environmental Conservation Act कि if any person or factory is prohibited by this act from releasing the pollutants, I am talking about this one, Environmental Conservation Act. Any person or factory is prohibited by this act from releasing the pollutants in atmosphere beyond the permissible limit. Permissible limit मतलब क्या? समझो एक फैक्ट्री है अपने यहाँ पे, वो फैक्ट्री को एक लिमिट दी थी कि तू दिन का 10 यूनिट्स, जस्ट एन एग्जाम्पल है, चलो 10 यूनिट्स जितना पोल्यूशन कर सकता है, मतलब ठीक है. अब ये फैक्ट्री कुछ अलग ही लेवल पे है, ये 10 की जगह 50 यूनिट्स का कर रही है पोल्यूशन. उसको परमिशन कितना दिया? 10 का, कर कितना रहा है? 50 यूनिट्स. गलत कर रहा है ना, तो उसके ऊपर ये एक्ट लगेगी, समझा? उसको पनिशमेंट मिलेगा गवर्नमेंट के साइड से कि देखो परमिशन सिर्फ 10 यूनिट जितना पोल्यूशन करने की थी, तो भाई 50 यूनिट क्यों कर रहा है? अब रोज अगर 40 यूनिट ज़्यादा करेगा तो कितना पोल्यूशन ज़्यादा है. यू अंडरस्टैंड मी? सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंग. Okay. Permission of central. Any person or factory is prohibited by this act from releasing the pollutants in atmosphere beyond a permissible limit. Permissible limit समझा ना? सबके पास लाइसेंस होता है और एक परमिट लिमिट होती है कि ये लिमिट के हिसाब से करना है काम. The person breaching मतलब to break. Breaching this rule is entitled for either 5 year imprisonment. अगर कोई ये चीज़ को तोड़ता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, तो या तो उसको 5 साल के लिए जेल हो जाएगी और फाइन अप टू ₹1 लाख. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन 2010 फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल रिलेटेड लॉज. ये स्पेशली बनाई इसलिए थी, ये देखने के लिए कि जिन जिन के ऊपर लॉज इम्पोज किए हैं वो मान रहे हैं कि नहीं कर रहे. अगर नहीं मान रहे तो हाई लेवल पे लेके जाएंगे, कोर्ट के लेवल पे लेके जाएंगे. ओके, नेक्स्ट. एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 वी विल अंडरस्टैंड. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 19 अच्छा दिस इज 1972. माय बैड. दैट इज व्हाट आई वाज वंडरिंग बिकॉज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 71 में आया था और वाइल्ड लाइफ 72 में आया था, इंदिरा गांधी के टाइम पे. Okay, as per the Wildlife Conservation Protection Act, that is of 1972, there are 3 clauses. Clause A, Clause B, Clause C. Clause क्या होता है? उसके अंदर के सब पॉइंट्स के उसमें क्या क्या पॉइंट इंक्लूड होते हैं. Clause A is
ट्रेडिंग ऑफ रेयर एनिमल्स हैज बीन कंप्लीटली बैंड। रेयर एनिमल्स मतलब अगर इंडिया का कोई रेयर एनिमल सोचे तो रेड पांडास। रेड पांडास का पिक्चर है टेक्स्ट बुक में, नहीं अच्छा But to see ऐसा एकदम लाइव में, then Google the red panda. They look very cute and very rarely found in India. They are found in the sub-Himalayan part, उत्तराखंड और सिक्किम के साइड पे। ओके, तो अगर उनको मार के उनकी ट्रेडिंग करते हैं तो गवर्नमेंट पनिशमेंट देगी। As per the clause 49B, use of articles prepared from skin or organs of wild animals has been banned. Skin, fur, एनिमल का फर या एनिमल के स्किन से जो लेदर बनता है, अगर वो निकाल के बेचते हैं या यूज करते हैं तो गवर्नमेंट पनिशमेंट देगी। वो जो हाथी दांत मैंने बोला, आइवरी जिसको कहते हैं, अगर आइवरी का कोई ऑर्नामेंट या कोई शो पीस यूज करते हैं गवर्नमेंट पनिशमेंट देगी। एज पर क्लॉज 49C, डिस्क्लोजर ऑफ द स्टॉक ऑफ आर्टिफैक्ट्स मेड फ्रॉम रेयर वाइल्ड लाइफ एनिमल इज कंपल्सरी। अगर तुम्हारे पास घर पे कोई भी रेयर आर्टिफैक्ट्स है, आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है रेयर शो पीसेस, या पहले मतलब ये तो 72 में आया ना, अब व्हाट इफ किसी के दादा ने 52 में लाके रखा था तो क्या करेंगे, 72 के पहले लाके रखा है तो फिर थोड़ी कुछ पनिशमेंट मिलेगी। बट उसके पास ये चीज़ घर पे है, समझ, वो पता है कार्टून्स में दिखाते हैं ऐसे बड़े बड़े लायन और डायनासोर्स, राइनो के ऐसे हेड्स होते हैं, वो ठाकुर लोग होते हैं उनकी हवेली में, काइंड ऑफ मूवी में दिखाते हैं और कार्टून्स में भी दिखाते हैं वैसा कि एनिमल का फर, एनिमल ऐसा डेड बॉडी स्लीपिंग, उसको एज कारपेट यूज करते हैं। तो अगर किसी के एंसेस्टर्स ने ऐसा ला के रखा था घर पे है तो वो डिस्क्लोज करना है गवर्नमेंट को, एनवायरनमेंट सेंटर में जाके बताना है कि मेरे घर पे ये चीज़ है जो एक्ट के पहले से थी, ताकि कोई और इसकी कंप्लेन ना करे और तुम्हारे घर पे रेड ना पड़ जाए, काइंड ऑफ। इट इज़ बेटर टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट कि ये हमारे पास 72 के पहले से है, तो हमारी गलती नहीं, हमने नहीं एनवायरनमेंट को हार्म किया, हमने नहीं ये एक्ट को तोड़ा है, वी आर नॉट लायबल टू द पनिशमेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉरेस्ट एनएक्टमेंट एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट्स। ओके, the last part that today we will be covering is about the big story of a small man, that is Mughalai forest. Normally I always advise my students कि ये story पढ़ के आओ, ये story बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं अभी भी यही बोलूँगी। I'll just give you a summary, but it is your responsibility कि ये पढ़ो, इसके बारे में और इंटरनेट पे पढ़ो, ये इनका कोई इंटरव्यू है तो देखो। This man he started with small sapling plantation, और उन्होंने खुद का पूरा फॉरेस्ट खड़ा कर दिया। He is born from a nomadic tribe in Assam. Nomadic tribe मतलब जंगल में रहने वाले, तो नॉट आदिवासीज बट काइंड ऑफ ऐसा है, मतलब वहाँ पे जंगल के बीच में जो गाँव होते हैं ना, विलेजेस, उधर रहने वाले लोग। ओके, ट्राइब ऑफ आसाम, बॉर्न इन 1963। एट द एज ऑफ 16 ईयर्स उन्होंने जो ब्रह्मपुत्र रिवर थी ना, वहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर के टाइम पे लास्ट नंबर वहाँ पे बहुत सारे स्नेक्स डाइड। ब्रह्मपुत्र रिवर में फ्लड आया था, फ्लड के टाइम पे बहुत सारे स्नेक्स मर गए क्योंकि ट्रीज गिरते हैं और लैंडस्लाइड्स होते हैं फ्लड के टाइम पे, तो लैंडस्लाइड्स में जो मिट्टी होती है उसमें जानवर फंस जाते हैं, तो बहुत सारे स्नेक्स फंस के मर गए। एज अ प्रिवेंटिव मेजर मोलाई प्लांटेड 20 बैम्बू प्लांटलेट्स। बैम्बू प्लांटलेट्स क्यों? ताकि नेक्स्ट टाइम अगर फ्लड आता है, आसाम में तो आए दिन फ्लड आते हैं ना, तो स्नेक आराम से उसके ऊपर खुद को लपेट लेंगे और बच जाएंगे। ये बंदे ने इतनी बड़ी बात सोची कि बैम्बू लगा देते हैं, अगर बाढ़ आई तो सांप खुद को लपेट लेंगे उस पे और बच जाएंगे। मतलब एट द एज ऑफ 16 थिंकिंग सच अ नोबल थिंग, बहुत अच्छी सोच थी इनकी। मोलाई प्लांटेड 20 बैम्बू प्लांटलेट्स। In 1979, local social forestry department began a social reforestation, a forestation project. A forestation का मतलब झाड़ लगाना। 200 hectares of land. Molai was once one of the few forest workers. मोलाई ने उधर भी काम शुरू किया जहाँ पे 200 हेक्टर का जो लैंड था उस पे झाड़ लगाने का काम करता था। मोलाई कंटिन्यूड दिस प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद भी। एज अ रिजल्ट उनकी कंटिन्यूस वर्क के वजह से एक जो बैरन लैंड था, बैरन लैंड मतलब सूखा जमीन, एकदम खाली पड़ा हुआ जमीन था, वहाँ पे 1360 एकर्स तक झाड़ आ गए। 1360 एकर्स एरिया जो सूखा पड़ा था, बैरन था, उस पे ट्रीज आ गए। Today this jungle in Kokilamukh of Jorat district in Assam is the result of hard work for 30 years.
ही हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड मिला है इनको बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उनका वो जो पूरा एरिया ना 1360 एकर्स का, उसको मोलाई जंगल के नाम से जाना जाता है। Many people come together to destroy the forest, बट ये एक बंदे ने अकेले ने पूरा का पूरा फॉरेस्ट बना लिया। हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो क्या करेंगे, एक सैपलिंग लगा लेंगे, बट इसने तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट खड़ा कर दिया। सच ए नोबल डीड टू डू। आई वुड रिक्वेस्ट कि इसके बारे में पढ़ो। एंड बाय द वे ये आंसर में भी आता है, हाँ, दिस इज वन ऑफ द टीचर्स फेवरेट क्वेश्चन। स्कूल एग्जाम्स में भी पूछते हैं और टीचर्स भी प्रीलिम एग्जाम्स में पूछते हैं। एंड आई माइट ऑल्सो आस्क यू फॉर द क्लास एग्जाम। So learn this मोलाई जंगल का एग्जाम्पल। Also learn the acts. Once again I am telling you, ये years very very important। मतलब all the part today which we have covered, उसमें से very important part is this years पढ़ना है अच्छे से, और मोलाई जंगल के बारे में, क्योंकि ये important answers है। Next session हम endangered species के बारे में पढ़ेंगे। That is the last part of the chapter. That what are the types of species left and what are the different types of diversities, और कुछ सिम्बल्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ छोटा मोटा एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। विद दैट वी विल कंप्लीट द चैप्टर इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।